Hello everyone. So we are back again and this time let's talk about irrational numbers because last time हमने already discuss कर लिया था कि real numbers क्या होते हैं, rational numbers क्या होते हैं. So I hope you all remembered that this was n set. N means natural numbers. फिर आते हैं whole numbers. Whole numbers में एक zero extra होता है. Then integers. Z से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर्स में जीरो होल नंबर में आ गया, नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स आ गए. सो इसमें एक्स्ट्रा नेगेटिव्स होते हैं, राइट? अब सिर्फ नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव से तो काम नहीं चलता. लाइक लाइफ इज नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, राइट? देयर इज अ ग्रे इन बिटवीन. सो then came to the rescue rational numbers. Okay, so rational numbers are represented by q, right? Rational numbers हमेशा p over q की फॉर्म में होंगे, जहां पे q should not be equals to zero, right? इतना क्लियर? नाइस. नाउ हमने देखा एक पूरा सेट है रियल नंबर्स जिसमें कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं जो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सक रहे. लाइक वी कांट राइट देम एज रैशनल नंबर्स. पी ओवर क्यू की फॉर्म में उनका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पा रहा. ओके, सो उनको बोलते हैं इररेशनल नंबर्स, नॉट रैशनल, व्हिच आर नॉट राइट. सो इररेशनल नंबर्स, उनका एक अलग से सेट बना. उनको क्यू डैश और क्यू सी से डिनोट कर सकते हो आप, क्योंकि इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं. बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन. बट दिस इज इररेशनल नंबर्स, इररेशनल. तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, राइट? क्योंकि सारे ही मेन चीजों के बारे में बात करते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट सम सेकेंडरी थिंग. ओके, सो इररेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आई थिंक आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, लाइक 1 मार्कर, एमसीक्यू टाइप्स, राइट? सो पाई, आवर फेवरेट पाई. Also, channel का नाम भी है 22/7 pi. Okay, so pi is an irrational number. It's not PIE, it's PI only. Pi जैसे और भी बहुत ज़्यादा irrational numbers हैं. So we're gonna discuss about those. So okay, चलो. So let's talk about irrational numbers. Now, पहले discuss करते हैं decimals, then आएंगे P over Q form पे. Decimals and surds, obviously. So they are of two types. Surd जो हैं वही decimal में भी लिखे जा सकते हैं. So decimals तो डायरेक्ट हो गए. Surds which can be written in this form as well. Okay, but how can you judge surds कि irrational है कि नहीं? Okay, now surds में कुछ examples. Square root 3. Do I know the answer of the square root? Nope. Is the square root 9 an irrational number? Is it? No, because इसका आंसर 3 है, which is itself a rational number. So this is not irrational, not irrational. It's a rational, right? What about cube root 9? Do we have any proper answer? No. So this is irrational. This is irrational. This is not. Is that okay? I hope it makes sense. Now हम कह सकते हैं कोई nth root. यहाँ पे वो नंबर जिसका आंसर, हमें इस पूरे का आंसर exact number, a whole number और integer नहीं है, not equals to integer, then this whole number itself would be considered as irrational number. I hope it makes sense. Because see, यहाँ पे integer आंसर आ गया, तो we are saying it's rational. यहाँ पे integer आंसर नहीं आया, we are saying irrational, right? Nth root. These are all surds, right? Now, very important subtopic, decimals. So ये आगे divide होते हैं repeating, repeat, right? Repeating. This terminating. This non-repeating, non-terminating, right? अब ये चीज याद रख लो, just इतनी चीज, इसको और elaborately discuss करते हैं. These all are the types of decimal, types of decimal. So what do you mean by types of decimal? Terminating. How can we write terminating decimal? Okay, let's talk about this first. Terminating decimal, जो terminate हो रहा है. What do you mean by terminating? Like termination letter. Stopping, I'm stopping, like quitting my job or anything, right? Terminator, who stops anything, right? Termination means stopping something, right? Okay, so terminating decimal means it has to be a decimal and it should stop, not going on and on and on and on, right? So 0.415, good example. It terminated after 3 decimal, 4 decimal, I don't care, it terminated, right? Okay, done. Next, repeating 14.9999, go on. Is it terminating? No. ये जो 3 dots दिख रही हैं आपको, 3 dots, ये लोग क्या करते हैं, ये डालते जाते हैं, like they continue it. No, ये 3 ही dots हैं, ये 3 ही डालनी है हमने. It is representing so on. इसका मतलब ही so on है. Sorry about the background noise. Just ये 3 dots. Okay, so now ये this can also be written as, this thing only can also be written as 14.9 bar. And this can also be written as 14.9. ऊपर ऐसे डॉट डलती है. सीबीएसई में डॉट्स कम होती हैं, we use bar only, but
अलग अलग बुक्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ऊपर डॉट डलती है, राइट। तो ऐसे ही अगर मुझे लिखना है 6.232323 and so on, so we're gonna write 6.23 bar like that, easy. This is also called, अब I don't know आप RS अग्रवाल यूज कर रहे हो, NCERT यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, this is also called recurring decimal, right? Recurring means reoccurring, दोबारा से आ रहा है, reoccurring, it's happening again and again, so it's occurring again and again. So reoccurring decimals or repeating and non. Okay, last one, as the name says, non-recurring, repeat नहीं हो रहा है, non-terminating, terminate भी नहीं हो रहा है, दोनों non, right? अगर इसकी बात करें terminating, can I call it non-repeating? कि अगर terminate ही हो गया तो repeat तो नहीं हो रहा ना, तो non-repeating, right? ये repeating है, so non-terminating. जो repeat ही हो रहा है वो रुक नहीं रहा, non-terminating, right? एक एक non आ रहा है दोनों में, इसमें दोनों ही non है, reoccur नहीं हो रहा, terminate भी नहीं हो रहा. Okay, start बच्चा लोग. 1.41239146. Do you know अगला नंबर क्या हो सकता है? Do you have any pattern? Nope. तो ये रहा नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, दिस, राइट। तो हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर्स की, फिर हमारे डेसिमल्स में, डेसिमल्स 3 तरह के होते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो ये 3 तरह के डेसिमल्स हैं, ये सारे इरेशनल नहीं, ये सारे इरेशनल नहीं, ये एक एक नॉन वाले ये रैशनल्स हैं। क्यू की आदत डालो, आर मत लिखना, आर इज नॉट रैशनल, आर represents real numbers, okay? क्यू की आदत डालो, ये रैशनल है। just this one non-recurring non-terminating is irrational, q dash, okay? अब ये रहे एग्जांपल्स आपके पास, ये इतना एग्जांपल है इसका, ये वाला एग्जांपल है इसका, एंड ये वाला एग्जांपल एंड मेनी मोर, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर। तो अब ये पार्ट इररेशनल है, ये पार्ट रैशनल। टेस्टिंग करते हैं, प्रूफ्स बड़े पसंद है ना तुम लोगों को, आ जाओ। सो लेट्स राइट ऑलरेडी नोन रैशनल नंबर, ठीक है? एक नंबर लेते हैं, इजी लेते हैं ताकि प्रूव अच्छा हो जाए। 2/5, ठीक है? क्या आंसर है इसका? टाइम्स टू बोथ साइड 0.4। कौन सा डेसिमल आया ये? Which decimal it is? Is it repeating, reoccurring? No. Did it terminate? Did it just terminate? Yes. So terminating. So terminating याद करो कौन सा वाला था? Rational. Hence proved. एक और नंबर ले लेते हैं, ऑलरेडी P over Q की फॉर्म में लेते हैं, राइट? ओके, 8, ये मैंने प्रॉपर लिया, अब मैं लेती हूँ इम्प्रॉपर। 8/3। चलो, आई नो कि तुम लोगों को अलाउड नहीं है कैलकुलेटर्स, बट प्रूफ के लिए चेक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। 8 divided by 3 क्या आ रहा है? 2.666666। इसने 7 कर दिया, इसने राउंड कर दिया, इसने राउंड किया मींस माय आंसर इज 2.666666। अगर आप ये डॉट्स लगा रहे हो तो आप राउंड नहीं करोगे, अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो देन इट्स परफेक्ट, ठीक है? अब ये कौन सा नंबर आ रहा है? ये टर्मिनेटिंग था, ये आ रहा है रिपीटिंग, राइट? रेकरिंग। सो रेकरिंग याद करो कौन से वाला था? रैशनल अगेन, तो दोनों रैशनल्स, the one which can be written as P over Q form, rational, done, okay. अब आ जाओ irrational। I know एक irrational number √3, मुझे पता है it's a surd which can't be solved into an integer or something, right? ये irrational है, प्रूव कैसे करें भैया? बच्चों को तो प्रूफ मांगता है, okay. So square root of 3, can you see that? 1.73205081, और अगर आप गूगल भी करोगे तो ये इट वुड बी गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये कोई रुक नहीं रहा है, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 1.73205081 एंड ऑन एंड ऑन। मुझे नहीं पता कि मेरा ये कहाँ रुक रहा है या नेक्स्ट नंबर क्या है, कुछ नहीं पता, राइट? कैन आई कॉल इट नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? या तो भाई रुक जाओ या रिपीट हो जाओ, नहीं, दोनों नहीं करना, जिद्दी। चलो जी, दिस इज इरेशनल नंबर्स, ओके? नाउ आई जस्ट प्रूव्ड इट टू यू कि इरेशनल कैसे भी नंबर लिखे हो, P over Q की फॉर्म में लिखा हो रैशनल होगा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, सर्ड की फॉर्म में लिखा हो कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। नाउ आई होप आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा कि इरेशनल्स कौन से होते हैं। सडनली हमें कैसे पता कि सर्ड सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये आपके लेवल पे इतना तो याद रहता ही है कि 10 का स्क्वायर रूट क्या है या 100 का स्क्वायर रूट क्या है, राइट? 10 का अगर मुझे नहीं याद आ रहा, सर्ड, क्योंकि मुझे ये तो पता है ना कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, देन 4 16 आता है, उसके बीच में सब
दिस इज नॉट इरेशनल, दिस इज नॉट इरेशनल, बीच में 11, 12, 10, 13, 14, 15 सबके स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे, राइट? आई होप इट मेक सेंस, राइट? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखो, पूछो, डाउट्स पूछने चाहिए। एंड आई होप ये इरेशनल वाली चीज समझ आ गई हो, टेस्ट भी करवा दिया। अब एक क्विकली समरी कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? डेसिमल्स पढ़े। पहली बात तो इरेशनल सर्ड्स की फॉर्म में होते हैं, सर्ड मतलब nth रूट कोई भी, राइट? और डेसिमल्स की फॉर्म में तो होते ही होते हैं, डेसिमल्स की फॉर्म में तो रैशनल भी होते हैं, बट कौन से वाले डेसिमल्स? नाउ नॉन रिपीटिंग प्लस नॉन टर्मिनेटिंग, जो दोनों होगा वो है इरेशनल। अब आते हैं रैशनल्स, जो एक हो, रिपीट भी हो रहा है तो रैशनल, टर्मिनेट भी हो रहा है तो रैशनल, राइट? आज इतना ही, आज के लिए बहुत है। नोट्स बनाओ, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर हर चीज मत लिखने लग जाओ, जस्ट मेन थिंग एंड हाईलाइट इट एंड कीप योर नोट्स क्लीन एंड टाइडी एंड एवरीथिंग, ओके? सो या दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड ओके बाय, हैप्पी लर्निंग।